I welcome you all to our today's webinar, Guruji ke Saath Gurwar. Friends, today is the 54th session of our webinar, wonderful webinar series organized by Ignited Minds by PHF under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. So let's welcome our today's speaker, my dear friend, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. She has studied BHMS from Venubai Yashwantrao Patil Medical College from Kolhapur, and she's practicing since last 20 years and practicing homeopathy since last 7 to 8 years into mind method. As you all know, she shares her daily rubrics on our various Telegram groups and WhatsApp and Facebook groups. She is also the founder, member, and admin of our Telegram group, and she handles many responsibilities for our group. And she also teaches in the same college where she has studied. She teaches subjects like organon and materia medica. So without wasting much time, let's welcome Dr. Mansi Patil. Please give her a big hand. I request you to unmute and give her a big hand, please. Welcome, Mansi. Welcome, Mansi. And you forgot, Priyanka, one thing you forgot. She is Bachchan of PHF. ते तुम्ही बोलता Okay. तुमच्यासाठी ठेवला. Over to you, Mansi. Thank you, Priya, for such a warm welcome. Thank you, sir. A very warm evening to all of you. So I will start without wasting time. I will directly share my screen. So first of all, gratitude to Dr. Samuel Hahnemann, Master of Homeopathy. Gratitude to my mentor, Guruji, guide, and our friend, Dr. Liaquat Namole sir, for guiding us, giving us the vision and believing in us. So thank you, sir. Thank you, Sanjay Sehgal sir. And thank you, all of you. So let us start today's topic, that is adolescence and homeopathy. So it is a holistic approach to nurturing health and balance. So let us understand what is adolescence. So we will just go through the definition. We all know everything about the adolescence, but still to revise. Okay, so adolescence comes from a Latin word that is adolescere. That means to mature or to ripen. Okay, so adolescence is a transitional stage of physical and psychological development that generally occurs during the period of puberty to adulthood. That is from childhood to adulthood, we can say. Adolescence is usually associated with the teenage years, but its physical, psychological, or cultural expressions may begin earlier or end later. That means the age is not a marker. Puberty typically begins during pre-adolescence, particularly in females, and physical growth, particularly in males, and cognitive development can extend past teens. So age provides only a rough marker of adolescence. So the psychologists or the scientists, they haven't decided a definite age, which we can call as a adolescent age. But World Health Organization has defined, officially designates as an adolescent as someone between the ages of 10 and 19. Okay. So just start with, so I have one song that I can correlate and everyone can relate to that song for our today's topic. I will just play that song.
chocolate juice, ice cream coffee, पहले दिन से अब मेरे शौक कहाँ गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ So can everyone relate this song to the period of adolescence? You can unmute and say. Yes. Yes, ma'am. Just moving to the next slide. Okay. So as we all know, adolescence there is a lot of change. As we said that in the definition, it is a transition from childhood to adulthood. So there are many changes taking place in the body as well as the mind of the child. Okay, so what are the changes? Some physical changes, emotional or psychological changes, and there are some cognitive changes as well. Okay, so what are those? So during adolescence, there are notable physical changes, including rapid growth spurts, the development of secondary sexual characteristics such as breast developments in females and facial hair growth in males, or the change of body shape and size. Again, the change hoarseness of voice in boys. Okay. Again, hormonal changes play a crucial role in these transformation. So because of the hormonal surge and the hormonal changes, there are many psychological or emotional changes in this period of age. Okay, so psychologically, adolescence is marked by increased self-awareness, the formation of personal identity, and the exploration of independence. Teenagers often experience emotional ups and downs as they navigate through various challenges and seek their own unique identity. That means they want to form their identity. Personality there होने शुरू हो जाती है. So this period is also characterized by some cognitive changes, as I said previously. So cognitive development, including the ability to think more abstractly, reason logically, and engage in complex problem solving. Okay, so these are the common changes, what we can say as a physiology of adolescence. Okay, so whenever there is some changes happening in the body, we have to understand that change and we have to accept that change, so that we cannot get into any conflicts. But here it happens that there are many conflicts because of everything is changing. The hormones are changing, the body is changing, and the child is maybe he or she is ready to accept the change, or maybe he have not that much of knowledge, or the environment which he is living in, he might not get that knowledge about the changes. Okay, what is the physiology and what may be the pathology. So if we give them, or if we make them know what is physiological, so they can better accept the change and they will not lead to any pathological changes. But here what happens, there are pathological changes or the some conditions which are caused during this period. Okay, so what are those commonest health concerns during the period of adolescence? Okay. The common health concerns in adolescence or the health issues that can occur during the adolescent period. प्रणिता, कोणाचा चालू आहे ऑडिओ फक्त? डिस्टर्ब होतं. हॅलो. हा, बंद केला पण ते परत चालू करत होते. Okay, so is it okay, going okay? Any doubt up till now, or am I very fast or slow?
Please tell me. Hello. Yes, perfect, madam. Okay, so these are the common health issues like acne, hormonal imbalances, menstrual irregularities, anxiety, and depression. So the depression, it may lead to even to suicide. So this is the very, very crucial period of the child, life of the child. Okay, so we have to take care of this. Okay, so again coming to the, so we have known the physiology, then the pathology, what health concerns may appear or may lead, and then how we are going to lead with these conditions or pathologies. So here the role of homeopathy comes in. Okay, so I will share a case. I will stop this screen sharing. Okay, so एक केस था एक्ने का. आई विल नॉट से एक्ने का केस. एक बच्ची थी 18-19 साल की. तो उसको एक यहाँ पे पिंपल के जैसा कुछ तो था, नॉट डायग्नोज्ड एज अ पिंपल और एक्ने. ओके, so she came to me and she was sitting like this and I was sitting cross. Okay, so she was showing with her hand, ma'am, see, I have this. Ma'am, see, I have this. So I said, what is this? So she said, I don't know what is this, but this is from since 8 to 10 days. And so I said, what is happening? Is it paining? और क्या हो रहा है? तो बोली कि नहीं, पेन वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन देखो ना मैम, अच्छा नहीं लगता ना, दिखने का अच्छा नहीं लगता. तो मैंने बोला ठीक है, उससे दिक्कत क्या हो रही है? तो बोली दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही है, वो दुख भी नहीं रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगता बस. तो उसने ऐसा वो स्माइल दिया. मैंने बोला ठीक है, फिर और क्या तकलीफ क्या है आपको, दूसरा कुछ है क्या? तो बोली कि हाँ, मुझे मेंसेस में थोड़ा सा पेन होता है. मतलब कहाँ होता है पेन? तो बोली कि बॉडी पेन होता है, बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है, और मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ. तो मतलब कुछ कर नहीं पाते मतलब क्या होता है? नहीं, मुझे सोना पड़ता है, लेटना पड़ता है, ताकि थोड़ा सा आराम मिले. तो मैंने बोला लेटने पर आराम मिलता है? तो बोले नहीं, आराम तो नहीं मिलता है, लेकिन क्या करूँ, अब काम भी सब रुक जाता है, लेटना पड़ता है, आराम करना पड़ता है. तो मैंने बोला ठीक है, और क्या दिक्कत है? तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ ठीक नहीं लगता, उदास लगता है, और जैसे कि ऐसे लगता है जैसे मैं बीमार हूँ, ऐसे लगता रहता है. 1-2-4 दिन तो ऐसी फीलिंग रहती है कि मुझे कुछ बीमारी है ऐसा. तो मैंने बोला ठीक है, और क्या होता है? तो बोले और तो कुछ नहीं होता है, बस यही तकलीफ है. मतलब महीना वगैरह ठीक से आता है? तो बोली हाँ, महीना तो ठीक से डेट पे डेट आता है, लेकिन ये सब परेशानियां होती है. तो मैंने बोला अगर नहीं होता, क्या लगता है तुमको, पेन की वजह से तुमको क्या लगता है, मन में क्या आता है? तो बोले कि कुछ नहीं आता है, लगता है अगर. मैंने बोला तो पेन नहीं होता तो क्या होता? बोले कि नहीं होता तो ठीक होता ना मैम, मैं काम कर पाती, सब मम्मी को हेल्प कर पाती. तो मैंने बोला ठीक है, तो तुम बड़ी हो सबसे? तो बोली हाँ, मैं सबसे, घर में सबसे बड़ी हूँ, और एक छोटी बहन है, 8th यानी 9th स्टैंडर्ड में है, और मम्मी है, और एक दादी है. तो मैंने बोला और पापा? तो बोली कि पापा तो मुंबई में रहते हैं, हम लोग 4 लोग इधर रहते हैं, तो मम्मी को थोड़ी सी हेल्प करनी रहती है, तो मुझे ये परेशानी है उसकी वजह से. तो बोला ठीक है, देते हैं मेडिसिन. तो बोले क्या करेंगे अभी, क्या है मैडम, ये क्या है? तो बोले ये क्या है, वो उसका टेंशन छोड़ो, हम लोग दवाई देंगे, वो सब चला जाएगा. तो बोले चला तो जाएगा ना? मैंने बोला हाँ ठीक, चला जाएगा, पक्का चला जाएगा. तो उसको मैंने एक मेडिसिन दिया, और उसके बाद मुझे लगता है एक 10-15 दिन के बाद वो फॉलोअप देने के लिए आई थी. तो हर फेस वॉज ग्लोइंग, और बिल्कुल बोली जिस दिन से मेडिसिन लिया उसके बाद से कोई तकलीफ नहीं है, वो चला भी गया पिंपल जो था.
और पेन जो था, जो लग रहा था मुझे बीमारी की तरह, तो वो भी नहीं लग रहा है, अभी मुझे फ्रेश लग रहा है। और शी वॉज हैप्पी। ओके, सो दिस इज द केस. You can unmute and give your input, whatever you feel. First, understanding of the patient, and then rubrics, and then remedy. Yes, anyone? हेलो. Hello. हाँ. हेलो. बोल. तो मैडम फास्फोरस लग रहा है. अच्छा. एम्बेरसमेंट है, उसको लाइट डिजायर है, कम्युनिकेटिव भी है, और डेल्यूजन सिक बीइंग ले सकते हैं. डिल्यूजन सिक. फास्फोरस लग रहा है. Delusion, sick being. Okay. हाँ जी, हाँ जी. एम्बरासमेंट. Embarrassment. Okay. हाँ. Phosphorus लग रहा है आपको. लाइट डिजायर पॉजिटिवली. Light desire positively. जलसेमियम. Okay. Positively क्यों? अच्छा, 2-3 बार बोला इसके लिए. ओके ओके. हाँ जी. ओके. और लाइट डिजायर तो है पक्का. अभी लाइट डिजायर की सारी रेमेडीज. एंग्जाइटी, वार्मथ, अमेलियोरेशन. एंजाइटी, वार्मथ, एमिलरेशन. ओके. हाँ जी. कैसे मतलब? जैसे इंश्योरेंस मिल गई, इंश्योरेंस उसको आराम मिला, इससे लाइट मिली उसको. लाइट मिली तो एमिलरेशन हो गया. हाँ जी. जब ओके. जब आपने बोला ना कि मैं ठीक हो जाएगा, बार बार पूछा, तो हाँ. आपने कहा ठीक हो जाएगा, इंश्योरेंस मिल गई ना उसको. ओके ओके. लाइट डिजायर है लाइट और डिजायर. डिलीजियस सिक भी, और वो केयर में है मैम. केयर अगर किसी को केयर में है मैम, फियर भी है. अपने हाँ, वो जो है हेल्प करना चाहती है, अगर ठीक नहीं है इस वजह से अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रही है, अपनी मदर की, तो कहीं ना कहीं केयर्स में है. क्या? यही केयर्स में है. केयर्स में है. हाँ हाँ. हम्म. तो क्या आ रही है आपकी रेमेडी? क्या आ रही है? ये तो देखा नहीं. अच्छा. और नाइट्रोम्यूर. नाइट्रोम्यूर क्यों? मैंने फास्फोरस. ओके. नाइट्रोम्यूर किसने बोला? नाइट्रोम्यूर क्यों लग रहा है आपको? मैडम एम्बेरसमेंट है, और हाँ. लाइट डिजायर डिलीजेंस सिक है, और वो फैमिली वो इसकी वजह से घर में काम नहीं कर पाती, इसलिए फैमिली के लिए बहुत केयर लगती है, तो मुझे नाइट्रोम्यूर लगती है. अच्छा. केयर का क्या लिया आपने? केयर फुल ऑफ क्या लिया केयर का? अदर. अदर्स. ओके. अदर्स क्यों लिया? अदर्स मतलब बाहर के लोगों की केयर करती है वो? किसकी केयर करते हैं? मम्मी की, दादी की और बहन की सॉरी, केयर करती है? केयरफुल ऑफ लाउड वंस. केयरफुल ऑफ लाउड वंस. लाउड वंस. लव्ड वंस. ओके, ऐसा है. उसमें है नाइट्रोम्यूर. मैंने बेनेवलेंस. बेनिवोलेंस क्यों? हेल्प करती है ना, हेल्पिंग हाँ. हैंड. रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स. केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट. रिलेटिव्स. यस, एग्जैक्टली. हाँ.
उसको बेनिवोलेंस लेके क्या सर? बेनिवोलेंस मतलब हेल्प करना। नहीं, बेनिवोलेंस का मतलब अलग होता है। बेनिवोलेंस इज दयालु बोल सकते हैं, करुणालु बोल सकते हैं, अफेक्शनेट जैसे देने वाला जो रहता है वो बेनिवोलेंट। ओके, और कोई ऐड करना चाहता है? जेनरसिटी। ओके, generosity is what? Generous is what? किसने लिखा है generous? ये generous benevolent कुछ भी नहीं है। ओके, diligent, unpleasant, careful of relatives about. ओके, तो क्या आ रहा है आपका? मेडिसिन क्या आ रही है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ कितने लोग हैं? मॅम एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बॅरसमेंट, डिल्युजन, सिक बिंग अँड लाईट डिझायर फॉर घेतलं तर नॅट्रमूर आणि फॉस्फरस येतात. आय फील नॅट्रमूर. Yeah, one rubric is there. Yes. बोलिए सॉरी. हा, म्हणजे त्या दोन्हीत मला नॅट्रमूर आहे असं वाटतं. का बरं? काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? फॉस्फरस तिचा कन्सर्न त्या पेनपेक्षा दिसण्यावर जास्ती आहे, म्हणजे दिसण्याचं जास्ती एम्बॅरसमेंट किंवा रिचर्ड फिलिंग ज्यातून असतं, त्याच्यामुळे मे बी शी इज गिव्हिंग मोर इम्पॉर्टन्स टू हर दॅट पिंपल अँड नॉट द डिस्मेनोरिया असं वाटतं. मी माझा प्रेफरन्स नॅट्रमूर. पर रेड शेड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? हा, म्हणून ते रुब्रिक नाही खूप जास्त होईल रेड हा शेड. नाही घेतलं. ते एम्बॅरसमेंटच केलंय, पण दोन्हीमध्ये डीडी करताना असं वाटलं की म्हणजे नॅट्रमूर कडे जास्ती. ओके ओके, और कुछ ऐड करना है किसी को? हेलो. ओके, सो डिस्क्लोज करते हैं. सो इट इज नैट्रमूर, बट एक रूब्रिक जो एक बहुत ही सिंपल रूब्रिक जो हम लोग नहीं सोचते हैं. सो आई टुक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. ओके, कि वो काम नहीं कर पा रही है, तो उसके पीछे हम लोग को जाना होता है कि काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे. वो अगर नहीं कर पा रही है उसको उससे दिक्कत क्या हो रही है. तो मैंने उसको उल्टा क्वेश्चन पूछा कि अगर ये बीमारी नहीं होती तो क्या होता. हाँ, तो उसने जवाब क्या दिया कि अगर नहीं कुछ होता तो मैं अच्छे से काम कर पाती. तो ये उसका जो जवाब था, तो मुझे वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा. तो उसके लिए मैंने उसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया और नैट्रमूर 30 दिया था. तो 30 से उसका भी ठीक है. उसके बाद उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है. मतलब मुझे लगता है बहुत 5, 6, 7, 8 साल हो गए होंगे उसको मेडिसिन देके. तो अभी तक चल रहा है अच्छे से. बीच में कुछ हुआ था तो वही रिपीट किया, उसके बाद से उसको कुछ कंप्लेंट नहीं आई है. ओके, एनी डाउट अबाउट नैट्रमूर? एक और केस है छोटा सा, जो कि अगेन रिलेटेड टू अडोलसेंस, क्योंकि जैसे हमने एक्ने देखा अभी, एक्ने विथ मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, दैट मीन्स द हार्मोनल इम्बैलेंस इज देयर डेफिनेटली. एंड
one more case where hormonal imbalance is there, and because of that we can say menarche एक तो डिले हो जाता है या फिर पहले आ जाता है। जैसे कि वी हैव सीन नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग, बहुत ज्यादा बच्चियों में ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो मेनार्के है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम द ईयर ऑफ एज ऑफ 8-9, या फिर उससे भी पहले, किसी किसी के तो उसके भी पहले आ रहे हैं। तो ये जो है उसको हम एक मतलब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ उसको एक रूब्रिक के साथ, जैसे कि वो जल्दी बड़े हो जाना चाहते हैं, तो उसको प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन हम लोग ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक बच्ची थी जिसको मीनार की जल्दी नहीं आ रहे लेकिन लेट हुआ था, डिलेड हुआ था, तो ये सीधा मतलब रूब्रिक भी हम लोग सीधा ले सकते हैं। तो ये केस बताने का ये है कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन होम्योपैथिक मेडिसिन कैन ब्रिंग इन द पर्सन। ओके, सो उसको क्या हुआ, वो बच्ची मतलब मेरी रिलेटिव ही है, गेस्ट है, मतलब दूर की जैसे रिश्तेदार। तो वो हमारे घर पे आती थी, तो जब छोटी इन द सेंस वो 8-9th क्लास में थी शायद, तो तभी उसके मेंसेस नहीं आए थे, तो उसकी मम्मी थोड़ी सी परेशान हो रही थी। तो उसके पहले भी वो बच्ची बहुत बार हमारे यहाँ आती थी, रहती थी, रह के जाती थी, लेकिन बात नहीं करती थी हम हमारे साथ, घर वालों के साथ, मतलब वो जैसे सहमा सहमा रहता है ना बच्चा, तो वैसी रहती थी। तो उसकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि इसको कुछ दवा दे, क्या कुछ कर सकते हैं क्या इसका, कि ऐसे हो रहा है, ये बच्ची बात नहीं करती है किसी से, किसी के सामने नहीं जाती है। तो और ऐसे मतलब वो जो बच्चों में रहता है, गांव के बच्चों में वैसा, तो वो थोड़ा सा वो झिझक एंड ऑल दैट वो सब था उसमें। तो वो सब सोच के मैंने उसको मेडिसिन दी। मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या होता है, होम्योपैथी से हो सकता है, तो आप टेंशन मत लो, और हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो मैंने उसको एक मेडिसिन दी, और उसके बाद से उसके जो पीरियड्स है तो इतने नॉर्मल हो गए हैं अब तक के। और वो बच्ची अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद उसने जर्नलिज्म में ये किया, अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो अभी मास्टर डिग्री कर रही है जर्नलिज्म में। तो दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट टिमिड गर्ल to this profession. So I'm happy with the result and Hell Homeopathy and Hell Hahnemann. So let us discuss this case also. So एक रूब्रिक तो मैंने बता दिया आपको फिजिकल वाला, 2 रूब्रिक्स मैंने और लिए थे माइंड के। तो रेपर्टरी उस टाइम पे नहीं थे हाथ में, ऐसे ही मैंने सोच के दे दिया था मेडिसिन। ओके, तो देखिए आप बताइए, रूब्रिक मैं बताऊंगी बाद में, क्या आता है आपके मन में, क्या आता है? हेलो, नेटम्यूर, ओके। हेलो मैम। हाँ बोलें। मैम सेलिशिया क्यों? टिमिड है हम्म और प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन है। हम्म प्रिकॉसिटी कैसे लिया आपने? मैम आपने कहा ना पीरियड्स उसके अर्ली हुए थे। अर्ली नहीं, लेट हुए थे। ओ ठीक। पल्सेटिला, क्यों पल्सेटिला? पल्सेटिला के जो लिए जो रूब्रिक है, साई या बेसफुल या टिमिड ले सकते हैं, और दूसरा फर्स्ट मेंसेस डिलेड या लेट मेनर्की, ये 2 के बेसिस पर पल्सेटिला आता है, ओके। और मैडम एक बार केस फिर शॉर्ट में रिपीट करेंगे, मैं कुछ सुना ही नहीं दिया है आपने मेरे को। सुनाई नहीं दिया तो अब बाद में देख लेना यूट्यूब पे। रिपीट करूं, सुनना है सबको?
देखिए वो बच्ची का ना मेंसेस डिलेड हो जाता है। एक मतलब रिश्तेदार ही है हमारी, तो वो बच्ची जैसे मैंने बोला वो टिमिड है, शाय है, किसी के सामने नहीं जाती थी ज्यादातर, और ज्यादा बोलती नहीं थी लोगों के सामने। अगर कोई अजनबी जैसे आता है, गेस्ट वगैरह, तो उनके सामने वो जाती नहीं थी, बोलती नहीं थी। और एक ये मेंसेस वाला जो मैंने बोला कि वो डिलेड, मेनार के डिलेड हो गए थे। और दूसरा कुछ नहीं है उसमें ज्यादा, खाली वो जो पहले जो टिमिड बच्चा था वो बाद में जाके अभी वो जर्नलिज्म में करियर कर रही है। तो दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन, वाज व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट होम्योपैथी। इतना सही केस है। So, timidity appearing in public. और एंजाइटी एंटिसिपेशन है क्या उसको? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है वो बताइए। हेलो, एम्ब्रा ग्रेसिया लगते हैं। एम्ब्रा क्यों? एम्ब्रा क्यों? बाहर जो भी रिश्तेदार आते थे, बाहर के लोग आते थे, वो छुप के बैठती थी। छुप के नहीं, लेकिन उनके सामने बोलना वो सब, वो नहीं, क्या झिझक बोल सकते हैं आप उसको, वो रहता था उसका। Hello, ma'am. हम्म बोला था। Timidity, हम्म public about appearing in, हम्म but capable, and delayed menses like appearing. लाइकोपोडियम, ओके। इसका और एक सब रूब्रिक भी आ रहा है मैडम, टिमिडिटी पब्लिक appearing about talk in public too. वेरी गुड। उसमें सिलिशिया है। है ना, तो अभी चेंज हो गया आपका प्रिस्क्रिप्शन, इसीलिए ही था। नहीं नहीं, एम्ब्रा बोला था। एम्ब्रा बोला था, तो अभी सिलिशिया पे आ गए। ओके। सिलीशा ही पैदा है, लेकिन दूसरा एक थॉट ऐसा है कि डिलेड डेवलपमेंट ऐसा सोच के बराटा कार भी सोच सकते हैं, टिमिड, बैशफुल, टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीयरिंग इन, एंड फीमेल जेनेटिक या डिलेड फर्स्ट मेंसेस। ये लिए तो सिलीशा भी है, उसके साथ साथ बराटा भी है, बराटा काफी सारे मेडिसिन, बट डिलेड डेवलपमेंट और फेशियल जेस्चर्स देखे शायद। ओके। इन सबको मिला के एक रूब्रिक होता है ना, टिमिड भी है, झिझक भी है, और क्या बोलते हैं उसको, ऑकवर्डनेस भी है, शाइनेस भी है। Timidity, bashful, awkward. Bashful, awkward. यस, ऐसे झिझक वाले बच्चों को ज्यादातर वो सब रहता है उसमें, टिमिडिटी भी रहती है, शाय भी रहते हैं बच्चे, और ऑकवर्डनेस तो रहता ही है। सो डिस्क्लोज करें तो ये सही था, टिमिडिटी अपीयरिंग पब्लिक इन टॉकिंग टू, बोलती नहीं थी ना। और दूसरा वो जो टिमिडिटी, बैशफुल, ऑकवर्ड, एंड फिजिकल वाला रूब्रिक जो मेंसेस, फर्स्ट मेंसेस डिलेड वाला, वो लेके सिलिशिया दिया था उसको। ठीक है, सिलिशिया के बाद इतना
ट्रांसफॉर्म हुआ था। उसके बाद में बीच में एक बारी ऐसा हुआ था कि अचानक वापस उसका जब ये हुआ, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जैसे कुछ उनके फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि एक ये स्टैंड आ गया था बीच में कि उसको पढ़ना है, आगे नहीं पढ़वा सकते, तो ऐसा मतलब बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल उस टाइम पे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो वो टाइम पे मैंने उसकी रेमेडी थोड़ी सी चेंज की थी, और उसके बाद वापस सिलिशिया देके वापस उसका अभी तो सब नॉर्मल है। अभी तो वो मैंने जैसे बोला जर्नलिज्म में है, तो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो केस याद करके भी अच्छा लगता है। ओके सो और भी जैसे है, हमने एक्ने देखा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का मतलब जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है एडोलसेंस में, तो उसके तो बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं। तो उसको हम लोग एक डायरेक्ट ये फिजिकल रूब्रिक भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ उसकी जो मेंटल स्टेट है वो मैच करके हम दे सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एलोपैथी में जब पेशेंट जाता है, जैसे कि गायनेक के पास गया, तो ये जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, तो उसके लिए हार्मोनल वो लोग बाहर से हार्मोन्स देते हैं, जैसे कि ओसी पिल्स वगैरह। पीसीओडी में भी बहुत सारे लोगों को वही ट्रीटमेंट दिया जाता है कि साइकिल ये करने के लिए, रेगुलर करने के लिए वो लोग ओसी पिल्स देते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ओसी पिल्स बंद करते हैं तो वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट आई फील कि होम्योपैथी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अभी हम लोग सारे होम्योपैथ्स ही है, तो सब लोग शायद एग्री करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीपीज है जो डरते हैं कि हम लोग नहीं दे सकते होम्योपैथी, या फिर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो हम लोग को उनको थोड़ा सा काउंसिल करके, पेरेंट्स को पहले काउंसिल करके फिर बच्चों को काउंसिल करके वो मेडिसिन स्टार्ट करना ही है, क्योंकि होम्योपैथी जैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, एलोपैथी में तो बिल्कुल नहीं मिलते ये चीजों के लिए। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्कस करो, अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, किसी से भी बात करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, जैसे हमने सर से सीखा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने ओनली जेस्चर्स सीखा, तो जेस्चर से सर तो 2 मिनट में मेडिसिन निकाल लेते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो मत जाइए एलोपैथी की तरफ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही बहुत अच्छा है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी ये लड़कियों में देखा हमने कि एक्ने का प्रॉब्लम तो इट हैज नो जेंडर, मतलब बॉयज में भी हो सकता है और गर्ल्स में भी हो सकता है, तो उसका कंसर्न देख के हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और दूसरा है जैसे और भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, जैसे हार्मोनल सर्ज मैंने बोला, बहुत ज्यादा हार्मोन एक इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे फीमेल्स में, बच्चियों में, गर्ल्स में कुछ चेंज आते हैं, बॉयज में अलग चेंजेस हो जाते हैं। तो जैसे बॉयज में टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ जाता है तो वो बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब कि उनमें थोड़ा सा एक, जैसे हमने एडोलसेंट का ये फिजियोलॉजी देखा कि वहां पे वो जो चेंज हो जाता है, तो उसमें बच्चों को ये रहता है कि अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, हम लोग कुछ तो है, ऐसा उनके मन में आने का शुरू हो जाता है। तो ये पीरियड में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको लगता है कि हम लोग कुछ थोड़ा सा सुपीरियर हो गए हैं, या फिर एक उल्टा भी हो जाता है कि बच्चों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब बच्चे बड़े दिखने लगते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट उतना बड़ा नहीं हुआ होता है, और जो उनका एनवायरनमेंट है, फैमिली है या फिर स्कूल में भी है, तो सब लोग उनको उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे जल्दी बड़े हो जाने चाहिए, मतलब बड़ों की तरह उन्होंने सोचना चाहिए या फिर बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये बच्चे एक्चुअल में बड़े नहीं हुए होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करना जाते हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलते करने के लिए, तो उनको गुस्सा आ जाता है।
तो ये जो कंडीशंस है, जैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम लोग बोल सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने एक केस भी शेयर किया था अपने इसी लेक्चर सीरीज में। तो वहां पे वो बच्चे में जो है एडोलसेंट एज का ही बच्चा था, तो वो बहुत ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस उसमें आ गए थे कि उल्टा बोलना, या फिर जैसे मैनिपुलेट करना, या फिर चीजें चोरी करना, पैसे चोरना वगैरह, ये चीजें भी इसमें आती है। तो इसके लिए भी हम लोग के पास बहुत सारे मतलब जो जो कंडीशन आएंगी तो उसके हिसाब से हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं और उसको कोरिलेट करके होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एडोलसेंट। और भी बहुत सारे केसेस है, लेकिन एक लेक्चर में सारा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग एक और शायद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसमें। देखते जब भी मेरा टर्न आएगा वापस तो कंटिन्यू करूंगी मैं इस पे ही। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सर, एंड थैंक यू माय PHF टीम। प्रिया, कई सॉरी, किसी को कुछ है डाउट, कुछ है तो पूछिए। और no doubts, so we can conclude. मैडम थर्ड रूब्रिक क्या क्या लिया था, कौन सा थर्ड? Timidity, bashful and awkward. नहीं थर्ड रूब्रिक, थर्ड मेंसेस का इसमें जाइए आप। लेक्चर रिपीट देख लो ना, लेक्चर रिपीट देख लो, वी कैन कंक्लूड। Yes. So thank you, Mansi, for the wonderful cases and wonderful analysis and evaluation for the adolescents problem and their solutions. So we can take lot many rubrics and give very good results in these cases. So thank you very much, and thank you, Liaquat sir, for supporting always and being there for us always. And thank you everyone for joining. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Very nice session. Thank you. Very, very nice session. God bless you. Thank you, sir. Shalom. Bye.